Hello student, welcome back to my YouTube channel. Let's start next topic of unit first, which is capacitors in series and parallel. बच्चे ये टॉपिक कदे कदे ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. let's start with the main topic, equivalent capacitance of capacitors in series. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ series ਦੇ ਵਿੱਚ capacitors ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ capacitance ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 capacitors ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੇ. ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ. ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ C1, C2, C3. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ V. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟਰ C1 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ V1, ਕਪੈਸਿਟਰ C2 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ V2 ਔਰ C ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ V3. ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬੱਚੇ V1, V2, V3 ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ. ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ V1 ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ, V2 ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਤਾਂ V3 ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, let V1, V2, V3 be the potential difference across 3 capacitors C1, C2, C3 respectively. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ V1, V2, V3 ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, V1 ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦਾ ਆ, C1 ਦਾ, V2 ਕਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, C2 ਦਾ, V3 ਕਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, C3 ਦਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰजेस Q on each plate remains constant. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੋ ਚਾਰਜ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ Q, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜੋ ਚਾਰਜ ਆ Q, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਚਾਰਜ Q. ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ, when the capacitors are connected in series, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ capacitors ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then potential difference across the combination is the sum of the potential difference across each capacitor. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, potential difference across combination, ਪੂਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੂਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ. ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਮਤਲਬ V1 plus V2 plus V3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, V is equals to V1 plus V2 plus V3. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ. ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. when the capacitors are connected in series, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, then potential difference across the combination, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, sum of the potential difference across each capacitor. ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਸੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ, V1, ਦੂਸਰੇ ਦਾ V2, ਤੀਸਰੇ ਦਾ V3. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ V ਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ V ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ. V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ, V1, Q ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ Q ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, divided by C1, V2 is equals to Q divided by C2. ਬੱਚੇ V ਔਰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, Q ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ Q ਹੀ ਆ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ V3. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, V is equals to V1 plus V2 plus V3 ਸੀ. Now what is V? V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, Q divided by C. ਬੱਚੇ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ S ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ, S ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਜ਼. V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, Q divided by C1 plus Q divided by C2 and V3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, Q divided by C3. now take common Q, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 plus 1 divided by C3. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ Q ਦੇ ਨਾਲ Q ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 divided by CS is equals to C1 plus 1 divided by C2 1 divided by C3. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ. ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉੱਚ 2 ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ. ਸੋ 2 ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ,
1/C1 प्लस 1/C2। बच्चे न्यूमैरिकल परपज़ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। न्यूमैरिकल ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। C1 C2 ਆ C2 ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ प्लस C1 1/CS। ठीक है। सो ਅਸੀਂ CS ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर न्यूमैरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 ਤਾਂ ਵੀ ठीक है। अगर इस तरीके ਨਾਲ यूज़ करना है ਤਾਂ भी ठीक है। सिर्फ न्यूमैरिकल परपज़ ਲਈ ਆ चीज़ दसी, इस करके ब्लू पेन यूज़ कर लिया। अदरवाइज ਇੱਥੇ तक बचे ਤੁਹਾਡਾ सीरीज़ वाले ਦਾ फाइनल आंसर सी। ठीक है बच्चे, नैक्सट आर्टिकल देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। जिद्दां आपां हुणे करके हटियां, सीरीज़ दे विच असीं कैपेसिटर्स लेते सी, हुण असीं की करांगे पैरेलल दे विच लवांगे। ठीक है। पैरेलल दा मतलब हुंदा आ कि जिथों जॉइंट आ उहदे ए और बी असीं दो टर्मिनल्स ले लैंदे आ। ए और बी असीं दो टर्मिनल्स ले लई। हुण असीं की करना, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लैन लगे। इट्स योर विश, तुसीं 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर्स 4 कैपेसिटर्स एज यू विश, जिन्ने तुसी कैपेसिटर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सो लेट अस सपोज कि असी की कीता 3 कैपेसिटर्स ले रहे हैं इस तरीके ना 1 2 एंड 3। बच्चे मर्जी है थोड़ी, तुसी जिन्ने मर्जी कैपेसिटर्स ले सकते हैं। सिमिलरली बच्चे डायग्राम इस तरीके ना भी बन सकती है। आ ए टर्मिनल और आ बी टर्मिनल है। अगर तुसी कैपेसिटर्स इस तरीके ना लेना चाहते, क्योंकि वायर्स ही कनैक्ट कीतियां, तुसी जिस मर्जी तरीके ना कनैक्ट कर लो। अगर तुहानू आ डायग्राम देखने अच्छी लग रही है तो ये बना लो, अगर आ वाली अच्छी लग रही है तो ये वाली बना लो। ठीक है। सो कोई भी डायग्राम तुसी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली हुण असीं इहनूं बैटरी दे नाल कनैक्ट करना। असीं की कीता, ए टर्मिनल तो वायर खिंची और इत्थे बैटरी लगाती। ठीक है। सो बैटरी लगावांगे, इहदा मतलब इहदे अक्रॉस जो वोल्टेज असीं देवांगे V। हुण आ कौन है, कैपेसिटर C1 कैपेसिटर C2 एंड कैपेसिटर C3। हुण ये सारियां दे अक्रॉस बच्चे जो पोटेंशियल आ V आ वो सेम रहेगा। ठीक है। ये अक्रॉस भी C1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा, C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V रहेगा, C3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम रहेगा। सेम क्योंकि पैरेलल दे विच आ। हुण देखो इधरों जिहड़ा चार्ज गया वो कितना सी Q। जदों इत्थे गया, मैं होर कलर चूज कर रही हूँ, ध्यान नाल देखना। जो इत्थे पहुंचेगा बच्चे ने 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाना 1 2 एंड 3। इसदा मतलब 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड हो गया। सो असीं दा इन्हें नाम रख दिता Q1। जिहड़ा C2 दे विच गया वो वाला चार्ज कितना आ Q3 Q2, और जिहड़ा लास्ट नीचे वाले दे विच गया वो कितना आ Q3। क्लीयर हो गया। इसदा मतलब जिहड़ा चार्ज Q आ वो 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड हो गया। इस केस दे विच पैरेलल के केस विच की होएगा, V कॉन्स्टेंट रहेगा। सीरीज़ के केस दे विच की सी बच्चे, एक चीज़ अपनी कॉपी दे किते साइड ते लिख लेना। अगर असी सीरीज़ दे विच कैपेसिटर्स लै रहे हैं तो थोड़ा Q कॉन्स्टेंट रहिंदा है। अगर तुसी पैरेलल दे विच कैपेसिटर्स जोड़दे आ दैन उत्थे V पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहिंदा है। क्लीयर हो गई इन्नी चीज़। सो नेक्स्ट देखो, लेट C1 C2 C3 कैपेसिटर्स आर कनैक्टेड इन पैरेलल। असी 3 कैपेसिटर्स लेते और उन्होंने पैरेलल दे विच कनैक्ट कर दिता। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जिहड़ा V आ वो हर एक दे विच की रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इसदी डेफिनेशन किस तरीके नाल लिखांगे, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। उदों ही कैपेसिटर्स नूं पैरेलल बोलदे आ व्हेन वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनैक्टेड टू एंड वन कॉमन पॉइंट ए। ठीक है बच्चे, एक प्लेट मतलब जी आ फ्रंट वाली प्लेट आ, एक प्लेट आ जी वो कनैक्ट की हुई आ ए टर्मिनल दे नाल। ठीक है। ए टर्मिनल दे नाल कनैक्ट की हुई है। एंड अदर एंड इज कनैक्टेड टू पॉइंट B। जिहड़ा दूसरी प्लेट का साइड आ वाली साइड आ ये किहदे नाल कनैक्ट की हुई है, B पॉइंट दे नाल। ठीक है। तो मतलब कॉमन पॉइंट A एंड B आ रहा इन सच अ वे दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। इन्हों इस तरीके ना सैट किया कि इन्हों जो पोटेंशियल डिफरेंस आ हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस की होएगा, थोड़ा सेम होएगा। इसका मतलब V इत्थे की आ रहा थोड़ा कॉन्स्टेंट। क्लीयर हो गया। दैन नैक्सट असी जा रहे हैं ये मैथमैटिकल पोर्शन ते। दैन क्योंकि ये बच्चे थोड़ा Q चेंज हो रहा, Q वेरिएबल आ तो असी लिख दिता Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बच्चे सीरीज़ के विच तुहानू याद होएगा थोड़ा पोटेंशियल चेंज हुंदा। सो असी लिखते सी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। लर्न करने का मैथड दस रही हाँ, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा सी सीरीज़ के विच तां असी V लिख रहे सी। पैरेलल दे विच की हो रहा थोड़ा
Q चार्ज ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, that is why ਅਸੀਂ Q ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3। then next देखो, now we know ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ Q ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, CV ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਆ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, C is equals to Q divided by V, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ Q ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ Q ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, Q ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, CV। क्लियर हो गया, सो ਅਸੀਂ ਆ ਟਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ Q ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ Q1 is equals to CV, ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, C1 C2 C3, ਠੀਕ ਹੈ, C1 C2 C3। ਸੋ C1 ਇੱਥੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, V, C2 ਇਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V, C3 ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ Q1 is equals to C1V। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, Q2 is equals to C2V, next किन्ना आ Q3 is equals to C3V। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ S ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, S ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, CV, C ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ S ਪਾ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆ, Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, C1V ਪਲਸ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, C2V, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ Q3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, C3V। ਨਾਓ ਟੇਕ ਕਾਮਨ V, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, CSV। ਨਾਓ V ਦੇ ਨਾਲ V ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, CS ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ P ਆਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ P ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ P ਆਏਗਾ। ਸੋ CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, C1 plus C2 plus C3। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ P ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ S ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, P ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ P ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ S ਲਿਖ ਦੂੰਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ C ਔਰ P ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਫ capacitors in series and capacitors in parallel। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, 2 capacitors of capacity 3 microfarad and 2 microfarad respectively are connected in series। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 capacitors ਲੈ ਲਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਆ 3 microfarad ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਆ 2 microfarad। ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖੋ। C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਬੱਚੇ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 3 into 10 raised to the power -6 ਫੈਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2 into 10 raised to the power -6 ਫੈਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, C1 C2 divided by C1 plus C2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ CS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 1 divided by C1 plus 1 divided by C2। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੱਤਾ, C1 C2 ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, C2 plus C1, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 divided by CS ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ CS ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ CS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, C1 C2 divided by C1 plus C2। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ C1। ਸੋ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਹ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 3, C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 3, C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2। ਸੋ 3 2 ਆ 6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5। ਸੋ CS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਗੈਟ 1.2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਫੈਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਾਂ
किस तरीके नाल सॉल्व करो। अगर तुसी फैरड तक ही लिख के आने तां भी तुहाडा आंसर बिल्कुल सही होएगा। अदरवाइज तुसी लिख सकते हैं CS इज इक्वल्स टू 1.2 × 10⁻⁻6 फैरड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। डन। सो बच्चे नैक्सट न्यूमैरिकल देखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमैरिकल। पंजाब बोर्ड दे विच इदां दे न्यूमैरिकल्स पूछे जाते हैं। सो अगर बच्चे 3 मार्क्स का न्यूमैरिकल आंदा तो इदां दे न्यूमैरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क्स का न्यूमैरिकल होवे तो लॉन्ग हो जाता। सो ये 3 मार्क्स से कह लो क्वेश्चन जो न्यूमैरिकल पूछा जा सकता। 2 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड वैन कनैक्टेड इन पैरलल। जो कहते पैरलल दे विच जोड़िया गया, पैरलल मतलब असी की लिख रहे हैं CP, क्योंकि उन्होंने साडे बच्चे सी उहदे पैर विच P पाना है, P नूं वड्डा ना कर देना, ठीक है। सो ध्यान ना P उहदे पैर विच पाना, क्योंकि उन्होंने बोलिया कि 2 कैपेसिटर्स आ, इट मीनस C1 + C2 दी जो वैल्यू आ दैट इज इक्वल्स टू 25 माइक्रोफैरड। इसका मतलब 25 इज इक्वल्स टू C1 + C2, क्योंकि उन्होंने CP की वैल्यू जो पैरलल जोड़िया आ कैपेसिटर की वैल्यू सानू गिवन आ, इसका मतलब CP की वैल्यू सानू गिवन आ 25 माइक्रोफैरड। क्लीयर हो गया। सो असी इत्थों की कर रहे हैं, चाहे तुसी C1 की वैल्यू निकालो चाहे तुसी C2 की वैल्यू निकाल लो। सो असी की कर रहे हैं C2 उधर ही प्यार रहन दिता, आ वाला C1 इधर ले आए। सो कितना आ जाएगा 25 माइनस C1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप पढ़ो, 6 माइक्रोफैरड वैन कनैक्टेड इन सीरीज। जदों दोनों कैपेसिटर्स असी सीरीज दे विच कनैक्ट करते हैं। बच्चे सीरीज का फॉर्मूला की सी, CS is equals to C1 C2 divided by C1 plus C2, ठीक है। देन अगर सीरीज च जोड़ते हैं तो CS की वैल्यू कितनी गिवन है साडे को 6 माइक्रोफैरड। इसका मतलब असीं इत्थे की पुट कर रहे हैं 6 is equals to C1 C2 divided by C1 plus C2। हुण की करना, by using equation number 1, by using इक्वेशन नंबर 1। बच्चे जो असीं इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करांगे साडे को कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू एज सच लिखी रहन दो, C2 की वैल्यू असीं की निकाली है 25 माइनस C1 डिवाइडेड बाय C1 एज सच लिखा रहन दो, एंड C2 की वैल्यू असीं की पुट करन लगे हैं, C2 की वैल्यू पुट करांगे 25 माइनस C1। डन। C1 दे नाल C1 की हो गया कैंसल आउट, क्योंकि आप पॉजिटिव आ और आह नेगेटिव आ, इसका मतलब कैंसल आउट हो गया। हुण रह की गई साडे को टर्म 6 इज इक्वल्स टू इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया गया 25 C1, C नू C नाल मल्टीप्लाई किया माइनस C1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25। इन द नेक्स्ट स्टैप 25 नू जो 6 के नाल बच्चे मल्टीप्लाई करांगे, 25 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 150। सो साडे को आ जाएगा 150। क्लीयर हो गया। हुण बच्चे नू अरेंज करना है। अरेंज मतलब पहला C1 की टर्म लिखनी है, फिर C वाली, C स्क्वेयर वाली टर्म, फिर C वाली, फिर सिंपल टर्म। इसका मतलब आ वाली टर्म नू पहला इधर उठा के लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा C1 स्क्वेयर, आ वाली टर्म उधर लेके जावांगे तो माइनस 25 C1। बच्चे आ टर्म माइनस दी सी दूसरी तरफ गई तो पॉजिटिव होगी, आ वाली टर्म पॉजिटिव दी सी दूसरी तरफ गई तो नेगेटिव होगी। जिहड़ा 150 है बच्चे असीं उधर ही पिया रहन दिता, उन्होंने नहीं इधर लेके आए, उन्होंने असीं इधर नहीं शिफ्ट किया। सो की होएगा प्लस 150 इज इक्वल्स टू इधर कुछ भी नहीं बचिया तो असीं लिख दिता 0। हुण तुसीं 9th 10th दे विच फैक्टर्स बनाना सीखे हुए हैं। सेंटर वाले टर्म नूं इस तरीके नाल तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 25 आवे और मल्टीप्लाई करे तो 150 आवे। सो इनू सॉल्व किद्दां करना बच्चे, 150 नू सॉल्व करके देख लो। 5 3s आ 15, नेक्स्ट 5 6 आ 30, 3 2s आ 6, 2 1s आ 2। ਇਹਦਾ मतलब आ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ इस तरीके ਨਾਲ सॉल्व करके देखते हैं कि साडी प्लस माइनस करे तो 25 बनता होवे और मल्टीप्लाई करे तो 150। फॉर एग्जाम्पल असी 5 और 3 नू 5 3s आ 15 ले लिया, 5 2s आ 10, एक ले लिया 10। अगर असी दोनों माइनस दे लैने, दोनों माइनस दे लैने तो साडा आंसर कितना आ जाएगा माइनस दे 25। ਇਹਦਾ मतलब सेंटर वाला पोर्शन साडा बन रहा है। हुण असी चेक करना कि यह मल्टीप्लाई करे तो
साडा नेक्स्ट टर्म बनती है माइनस के नाल माइनस कैंसल 15 नूं जदों 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर आ जाएगा 150 पॉजिटिव दे 150 ਇਹਦਾ मतलब ये बन रहा है। सो ये फैक्टर्स असी बना सकते हैं -10 और -15 का। ठीक है, सो असी की करना हुण फैक्टर्स बनाने लगे हैं c1 स्क्वायर -15 c1 -10 c1 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। हुण की करना बच्चे, पहलियां दो टर्म्स के विचों कुछ कॉमन निकालना तो पिछलियां दो टर्म्स के विचों। ठीक है, फैक्टर्स अदरवाइज तुहानूं बनाने आंदे आ। c1 कॉमन निकालिया, अंदर की रह जाएगा c1 क्योंकि स्केयर सी, स्केयर विचों एक टर्म असी बाहर निकालिया, -15 अंदर रह गया, c1 असी बाहर निकालता। ठीक है, नेक्स्ट देखो इत्थे माइनस और इत्थे प्लस आ, असी की कीता माइनस बाहर निकालन लगे, माइनस दे 10 बाहर निकालते, अंदर की रह गया c1 पॉजिटिव दे c1 क्योंकि माइनस असी बाहर निकालता। बच्चे अगे की सी पॉजिटिव, पर असी नेगेटिव बाहर निकालिया तो अंदर की रह जाएगा नेगेटिव। 150 चो 10 बाहर निकालते, अंदर रह गए 15 इक्वल्स टू 0। हुण की करना, आ वाली टर्म और आ वाली टर्म नूं इकट्ठे लिख देना। नेक्स्ट आ दोनों सेम आ ब्रैकेट दे अंदर, तो साडा फैक्टर्स बन गए c1 -10 c1 -15 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब साडे को दो टर्म्स आ गई, c1 -10 और c1 -15 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब c1 -10 इक्वल्स टू 0 और c1 -15 इक्वल्स टू 0। सो इत्थों c1 का आंसर कितना आ जाएगा 10 फैरड 10 माइक्रोफैरड, और इत्थों कितना आ जाएगा c1 की वैल्यू 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये मतलब c1 दी बच्चे साडियां दो वैल्यूज आ गई, बट असी सपोज करन लगे सी दोनों चों कोई एक सपोज करनी है। इट्स योर विश, चाहे तुसी 10 सपोज कर लो, चाहे तुसी 15 सपोज कर लो। ठीक है, हुण असी की कीता, लेट c1 इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरड। असी दोनों चों एक चूज करनी से असी लेट कर लिया कि असी c1 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड लिती है। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी बच्चे की सी c2 इज इक्वल्स टू, सो अपना फर्स्ट पेज निकाल के देख लो, 25 माइनस c1। सो c1 की वैल्यू असी की सपोज की 10, सो 25 चो 10 माइनस किते साडा आंसर आ जाएगा 15 माइक्रोफैरड। इसका मतलब c2 का आंसर कितना आ गया 15 माइक्रोफैरड। c1 की वैल्यू भी पता लग गया और c2 की वैल्यू पता लग गई। अगर बच्चे मान लो तुसी c1 की वैल्यू सपोज 15 कर दे तो c2 की वैल्यू कितनी आ जानी सी 10 माइक्रोफैरड। सो कोई फर्क नहीं पैंदा तुसी आ वाली वैल्यू सपोज कर रहे हैं कि आ वाली सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तुहाडा c1 और c2 का आंसर आना चाहिए सी। उन्होंने इंडिविजुअल अलग अलग कैपेसिटेंस पता करन नूं कहा सी, c1 एंड c2 पता करन नूं कहा सी, जो असी पता कर ली। डन। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इहदे विच उन्होंने बोलिया two capacitors of unknown capacity can produce maximum capacity 16 farad। हुण बच्चे याद रखना आ, अगर उन्होंने बोलिया कि मैक्सीमम जिहड़ा पैरलल प्लेट पैरलल आंदा आ, पैरलल कैपेसिटर्स जोड़े जाते हैं, उदों जिहड़ी तुहाडी वैल्यू आ वो कितनी आंदी आ मैक्सीमम आंदी। मैक्सीमम मतलब उन्होंने पैरलल की गल की हुई आ। नैक्सट उन्होंने बोलिया एंड मिनीमम 3 फैरड। मिनीमम मतलब उन्होंने किहदी गल कीती आ सीरीज़ की। क्लीयर हो गया बच्चे, अपने दिमाग विच रखना है। मैक्सीमम मतलब थोड़ा पैरलल दे विच कैपेसिटर्स जोड़े गए आ, मिनीमम मतलब सीरीज़ दे विच जोड़े गए आ। सो आप इनू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन दे विच की लिखांगे CP, क्योंकि उन्होंने 2 कैपेसिटर्स बोलिया तो CP की वैल्यू कितनी है C1 + C2। पैरलल की वैल्यू उन्होंने कितनी गिवन है 16 फैरड, असी पुट कर दिता 16 इज इक्वल्स टू C1 + C2। हुण इत्थों तुसीं की करना है C2 की वैल्यू निकाल लो। C2 की वैल्यू कितनी आएगी 16 - C1। लेट अस सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड है मिनिमम 3 फैरड। मिनिमम मतलब असी सीरीज़ की गल करनी है। सो सीरीज़ की गल करांगे तो CS का फॉर्मूला कितना हुंदा है C1 + C2 C1 C2 divided by C1 + C2। ठीक है, सो नाउ पुट द वैल्यूज। CS कितना थोड़ा गिवन है 3 फैरड, सो असी पुट किया 3 इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू एज सच, C2 की वैल्यू 16 - C1 डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू एज सच, C2 की वैल्यू कितनी आएगी +16 - C1। बच्चे हुण जो कैंसल आउट होंदा है उन्होंने कैंसल आउट कर दित्तो।
ठीक है। 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 16 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੈਟ 48 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ C1 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ C ਨੂੰ C ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, मतलब ਆ दोनों टर्म्स उठा के इस तरफ लेके आओ। अगर इस तरफ लेके आवांगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। C1 नैगेटिव का सी दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो गया, प्लस 16 C1 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। 48 एस सच पे आया, सो असी एस सच लिख दिता। हुण असी बच्चे फैक्टर्स बनाने आ। फैक्टर किद्दां बनावांगे, असी की किता 48 नूं दे फैक्टर्स बना के देख रहे हैं। ठीक है, 4 3s आ, नैक्सट की आ 3 1s आ। इहदा मतलब इस तरीके नाल गए। सो इनू इदां ही पिया रहन दो। आ दोनों देखो 4 3s आ 12। ठीक है, सो दोनों नू मल्टीप्लाई किया 48। इहदा मतलब पिछे वाली टर्म तुहाडी बन रही है। हुण अगर असी 4 माइनस से ले लीए, 12 भी माइनस से ले लीए, माइनस से 16 बन रही है। मतलब माइनस से 16 बन रही है। क्लीयर है बच्चे? जे असी दोनों पॉजिटिव दे लवांगे तो पॉजिटिव आ जाऊगा, तो साडा माइनस के विच आंसर नहीं आएगा। इस करके सानू पता है कि असी दोनों नैगेटिव दे लवांगे तां ही साडा आंसर माइनस के विच आएगा। सो असी की कीता माइनस के विच ले लिया। इहदा मतलब सानू फैक्टर्स पता लग गए। C1 स्क्वायर, सो सेंटर वाले पोर्शन नू तोड़िया, 4 C1 माइनस 12 C1 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। हुण बच्चे फस्ट आ वाली टर्म दे विचों कोई कॉमन निकाल लो, दैन आ वाली टर्म दे विच कुछ ना कुछ कॉमन निकालांगे। फस्ट वाले चो C1 कॉमन निकाले, अंदर रह गया C1 माइनस 4। नैक्सट चो माइनस 12 कॉमन निकालिया, अंदर की रह गया C1, प्लस की जगह ते आ गया माइनस। 48 चो 12 बाहर निकाले तो अंदर रह गया 4 इक्वल्स टू 0। क्लीयर हो गया? मैं सर्कल्स हटा देनी कि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हुण देखो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म बच्चे ऑलवेज सेम बनती होएगी। C1 माइनस 4 पहले विच भी आ रही है, दूसरे विच भी आ रही है, तो मतलब सेम आ। सो C1 माइनस 12 C1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ਇਹਦਾ मतलब C1 के 2 आंसर आ जाएंगे, या तो आ जाएगा 12, जे तुसी पूरा इस तरीके नाल लिखना पूरा भी लिख सकते हैं, और C1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब C1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 फैरेड, या फिर C1 की वैल्यू आ गई 4 फैरेड। हुण दोनों चों बच्चे एक टर्म मननी आ, तुहाडी मर्जी, जिहड़ा मर्जी मान लो। लेट C1 इज इक्वल्स टू 12 फैरेड, then put in equation number 1, then put in equation number 1। so equation number 1 आ गई। so C2 की वैल्यू कितनी आएगी 16 माइनस C1 कितना थोड़ा 12, 16 चो 12 माइनस कितने आ गया 4 फैरेड। इसका मतलब C2 की वैल्यू आ गई 4 फैरेड, और C1 की वैल्यू थोड़ी कितनी सी 12 फैरेड। सो थोड़े 2 आंसर आ जाएंगे। जो उन्होंने कहा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, कल्ले कल्ले कैपेसिटर की वैल्यू पता करनी है, C1 एंड C2 जो असी फाइंड आउट कर ली। सो बच्चे इस पूरे आर्टिकल या किसी न्यूमैरिकल दे विच किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आई होवे, कोई डायग्राम ना समझ लगी होवे तो तुसी पूछ सकते हैं। अगर तुहानू लैक्चर अच्छी तरह ना समझ लग गया तो बच्चे वीडियो लाइक जरूर करना और सबसक्राइब जरूर करना, तां जो तुहानू आने वाली वीडियोज़ आ तुहानू इमीडिएटली जिहड़ा उहदी नोटिफिकेशन मिल जाए और तुसी टाइम तो पहला जिहड़ियां वीडियोज़ देख सको, समझ सको। अगर कोई छुट्टी आती है तो उन्हें ईजीली समझ के पहला ही अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सको। थैंक यू सो मच।